Good afternoon. Today we are going to start with the poem Dover Beach by Matthew Arnold. So, Matthew Arnold, as you all know, is one of the best Victorian poet. He was a poet and essayist born in Laleham, Middlesex in 1822 and was quickly recognized for his talent. He completed an undergraduate degree at Balliol College, Oxford University, after which he taught classic at Rugby School. Arnold would then work for 35 years as a government school inspector, during which time he acquired interest in education that influenced his poetic works and established his reputation as a poet and became professor of poetry at Oxford, wrote a number of critical works during this time. So, मैथ्यू आर्नल्ड के का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद में आई हैव गिवन दैट एंड वी स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोएम डॉवर बीच. इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग लेमेंटिंग द लॉस ऑफ ट्रू क्रिश्चियन फेथ इन इंग्लैंड. ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. जैसे हमने माई लास्ट डचेस कल पढ़ा था, तो इट वॉज ऑल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग where the speaker was the Duke himself. And here the poet is lamenting the loss of true Christian faith in England during the mid 1800s as science captured the minds of the public. 1800 इस ड्यूरेशन में इंग्लैंड में बहुत तेज़ी के साथ वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों का किस तरह से क्रिश्चियनिटी पे बिलीफ ख़त्म होता जा रहा था, फेथ की कमी हो गई थी, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे थे. इसीलिए ये जो डॉवर बीच पोएम है वो उसने यही सब चीज़ें ध्यान में रख कर लिखी हैं. द स्पीकर considered to be Matthew Arnold himself begins by describing a calm and quiet sea out in the English Channel. He stands on the Dover coast and looks across to France, where a small light can be seen briefly and then vanishes. This light represents the diminishing faith of the English people and those the world around. Throughout this poem, Arnold crafts an image of the sea receding and returning to land with the faith of the world as it changes throughout time. At this point in time, though the sea is not returning, it is receding farther out into the strait. So, this is a very important poem because its main focus is on faith. Faith used to encompass the whole world, holding the populace tight in its embrace, though it is losing ground to the sciences, particularly those related to evolution. जब ये चार्ल्स डार्विन की 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ आया, एवोल्यूशन की थ्योरी आई, उसके बाद लोगों का इन सब चीज़ों पे विश्वास जो है वो कम हो गया. द पोएम कंक्लूड्स pessimistically as the speaker makes clear to the reader that all the beauty and happiness that one may believe they are experiencing is not in fact real. The world is actually without peace, joy, help for those in need, and the human race is too distracted by its own ignorance to see where true assistance is needed anymore. लोग अपने आप में इतना डूबे हुए हैं लॉस ऑफ पीस के कारण, जॉय के कारण, कि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो ह्यूमन रेस है अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्दी पूरी ह्यूमन रेस पैरिश हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी. तो इसी सोच के साथ पोइट जो है उन्होंने ये पोएम लिखी है डॉवर बीच, जिसमें जो आर्नल्ड है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है अपने. द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1867. अपने उसी पैसिमिज्म को शो कर रहा है, बिकॉज बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, टू लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, है ना. तो यही बात कह रहा है कि जो ह्यूमन रेस है
वो एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दिया है, लाइक दैट। तो यही बात जो है ग्रीक पोइट सोफोक्लिस ने भी यही बात कही थी, क्या, कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी, है ना। इस दुख, यहाँ लोगों के लिए लोगों का साथ छूटने से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ दुख है और लोगों का एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है वो ख़त्म हो चुका है। व्हाट आर दे आर डूइंग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट है उन पर, तो लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से लड़ने में बिज़ी हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने में बिज़ी हैं, सब कुछ पैरिश, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो फेथ रहा नहीं है, इसीलिए लोगों एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा है, लव नहीं है, इसीलिए उसे ये पोएम जो है लिखी है उसने, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। As the poem starts, the sea is calm tonight, gleams and is gone. The cliffs of England stand glimmering and vast out in tranquil bay. Come to the window, sweet is the night. Yeah, she is calling his beloved. His wife is with her. He is calling his beloved only from the long line of spray where the sea meets the moon-blanched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return. Up the high strand, begin and cease, and then again begin, with tremulous cadence, slow and bring the eternal note of sadness in. So he begins his poem, this poem, by giving a description of the setting. What you see in the first stanza, the poet sees the calm sea in full tide at the Dover beach. In the second stanza, the roar of the ebbing sea strikes a note of sadness in his mind. लहरें आकर ज़मीन से टकराती हैं, फिर वापस अंदर चली जाती हैं, फिर समुद्र से लहरें उठकर आती हैं, लाइक दिस। तो ये क्या स्ट्राइक कर रहा है कि वो बहुत दुखी है, बहुत सैड है। फिर आगे वो बताता है कि सेम इसी तरह से वो सोफोक्लिस को याद करता है, Greek Sophocles was reminded of human misery as he heard the roar of the sea waves at the Greek coast. तो यहाँ वो रिकलेक्ट कर रहा है कि सिमिलर वे में सोफोक्लिस ने भी ऐसा ही फील किया था while he was standing there, है ना, लॉन्ग बैक उस ग्रीक कोस्ट पे खड़े हुए सोफोक्लिस ने भी वही चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। तो उसने माना था कि जो ह्यूमैनिटी है, इट इज़ अंडर ग्रीफ, अटर ग्रीफ। तो ये ग्रीक ड्रामेटिस्ट सोफोक्लिस जो है वो यहाँ पर उसी बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द रोरिंग साउंड ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ द सी वेव्स। तो पोइट जो है वो अपनी बिलवेड से को बुला रहा है और उसे इन आवाज़ों को सुनने के लिए कह रहा है। व्हाट ही सेज इज़ देयर इज़ अ एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। वो जो समुद्र के किनारे जब आप खड़े हो रहे हो डोवर बीच पे, फ्रांस के उस कोस्ट पे वो खड़ा हुआ है, सी कोस्ट पे, और वो जो एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ है उसके बारे में रिफ़्लेक्ट कर रहा है। जिस तरह से सी का एब एंड फ्लो देखकर उसे जो ह्यूमन लाइफ है विच इज़ फुल ऑफ मिजरी एंड मिसबिलीव या डिसबिलीव इन द सेंस के पीपल डोंट हैव एनी फेथ ऑन ईच अदर, आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनके अंदर से बिलीफ जो है ख़त्म हो गया है और उसकी जगह लोगों ने एक दूसरे को अविश्वास करना शुरू कर दिया है, लाइक दैट। तो आर्नल्ड बिगिंस दिस पोएम, द सी इज़ सैड टू बी काम, देयर इज़ बीच ऑन द वाटर एट फुल टाइड, द मून लाइज फेयर लवली अपॉन द स्ट्रेट जो आप जानते ही हैं, इट्स अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो इंग्लिश चैनल से होता हुआ डोवर बीच तक आ रहा है, उसी स्ट्रेट की वो बात कर रहा है। और जहाँ स्पीकर जो है ही इज़ एबल टू सी अक्रॉस द चैनल टू द फ्रंट साइड ऑफ द वाटर। पानी की एक लकीर नज़र आ रही है। पानी, आपने देखा होगा जब समुद्र किनारे हम खड़े होते हैं तो बीच का जो पोर्शन होता है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल चमकीला पानी नज़र आता है। तो वो जो जब उस पर लाइट्स पड़ रही हैं
तो lights on the far coast are visible gleaming. They disappear and the cliffs of England are standing by themselves, vast and glimmering in the bay. समुद्र किनारे पर वो जो इंग्लैंड की क्लिफ्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और अंधेरे में फिर वो डूब जाते हैं. And the light that shines then vanishes, representing to this speaker and to Arnold himself the vanishing faith of the English people. वो लाइट जो चमकती हुई दिख रही है और फिर वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, फिर से लौट आ रही है, तो वो सारी चीज़ें उसको क्या याद दिला रहा है कि इसी तरह से इंग्लिश पीपल जो हैं उन्होंने उनका जो फेथ है वो भी इसी तरह से वैनिश हो गया है. तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, तो यहाँ एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि द साउंड ऑफ द वेव्स टेल्स ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी. और वो कहना चाह रहा है कि हमेशा से, चाहे वो ग्रीक टाइम की बात हो, सोफोक्लिस जो ड्रामेटिस्ट था उसने भी इसी ह्यूमन मिजरी को डिस्क्राइब किया था और वही ह्यूमन मिजरी आज वो फील कर रहा है और उसे अब एक्सप्रेस कर रहा है सी कोस्ट पे खड़ा होके. नो वन अराउंड हिम seems to see the enormity of what is happening. रात बिल्कुल शांत है और क्या घटना घटने वाली है, किस तरह से लोग जो है अविश्वास करने लगे हैं, को लोगों की लाइफ कितनी मिजरेबल हो गई है, कितना ज़्यादा वो मिजरी और कितना सैड फील कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें अकेला वो ही फील कर पा रहा है और उसको यहाँ लगता है द पोइट रेफर्स टू एज ट्रैंक्विल. मैनी थिंग्स में सीम वन वे बट एक्चुअली एग्जिस्ट एज द ऑपोजिट. लेकिन जब रीडर इस पोएम को पढ़ेंगे तो दे विल कम टू सी मैनी थिंग्स में सीम वन वे. कुछ चीज़ें उनको किसी और तरह से लगेंगी लेकिन वास्तव में वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. नाउ द स्पीकर टर्न्स टू अनदर पर्सन दैट इज़ in the scene with him and asks that this unnamed person comes to the window and breathe in the sweet night air. Although we have not given any reference to who was with him in that room, they were standing by the window looking towards the sea, and he wants that person to come near the window to have that sweet night air. The second half of this stanza is spent on describing the sounds of the water that the speaker is viewing. The speaker draws his companion's attention to the sound that the water makes as it rushes in over the pebbles of the shore. They roll over one another, creating the grating roar. नेक्स्ट जो लाइन्स हैं यहाँ वो बात कर रहा है, उन लाइन्स में वो सेकेंड हाफ का जो स्टैंजा का जो सेकेंड हाफ है उसमें वो वाटर के पेबल्स के साथ बहने की आवाज़ को, वेव्स के राइज एंड फ्लो को, राइज एंड फॉल को सुन रहा है और वाटर का जो फ्लो है उस वाटर के फ्लो के साथ उन वेव्स के साथ किस तरह से जो पेबल्स हैं उनको वो अपने साथ अंदर पानी में ले जाता है और फिर कैसे शोर पे वो फिर उनको फेंक देता है. और इसी वजह से वो जो पेबल्स, जो क्रैग्स है ना, जो पेबल्स हैं वो कितने गोल गोल पत्थर आपको समुद्र किनारे पर अक्सर पड़े हुए दिखाई देते हैं. तो लाइक दैट. तो व्हाट ही वांट्स इज व्हाई ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सी के बारे में वो क्यों बात कर रहा है, क्यों वो कह रहा है सी के बारे में, वो क्या किस लिए सी के बारे में बात कर रहा है. द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, मून लाइज फेयर, कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट एयर. ये तो हो गया. Where the sea meets the moon blanched land, listen you hear the grating roar of pebbles. वो टकराने की रोर, तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है पेबल्स की, जो वेव्स उन्हें अपने साथ ड्रॉ करके ले जाती हैं. एंड फ्लिंग का मतलब होता है ज़ोर से उठा के फेंक देना. रिटर्न पर, और वो जो हाई स्ट्रैंड, वो जो ऊंचा स्थान है जहाँ खड़े होकर वो सी साइड को आप देख सकते हो. बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन विथ ट्रेमुलस केडेंस, स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन. तो यहाँ पोएट जो कह रहा है कि आप जब इस पेबल्स के इस मूवमेंट को, रोरिंग साउंड ऑफ द वेव्स को हम सुन रहे हैं, थ्रोइंग ऑफ द पेबल्स को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इससे जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, केडेंस ऑफ स्लो
स्लो केडेंस, है ना, ट्रेमुलस केडेंस स्लो। तो जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है वो कैसा है, फुल ऑफ मिजरी, दुख से भरा हुआ। एंड सो द सी ऑफ रिलीजियस फेथ, वो कहता है, वॉज वंस फुल एंड नाउ इट इज़ रिट्रीटिंग। लोग आपस में एक दूसरे पे विश्वास करते थे, लेकिन वो जो फेथ था, सी रूपी फेथ, जिसने चारों तरफ से धरती को घेर रखा था एक गर्डल के फॉर्म में, उसे अपने, है ना, यूनाइटेड कर रखा था, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। वो जो सी है और फेथ इज़ नाउ रिट्रीटिंग, पीछे हट रहा है। और ऐसे में उसे लग रहा है कि वो जो डिफरेंट जो वॉइसेस आप सुन रहे हो सी साइड पे खड़े हुए, उसकी वो बात कर रहा है। तो नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द pebbles on the shore, they roll over one another, creating grating roar. This happens over and over again as the sea recedes and returns. The slow cadence of this movement, its eternal repetition, seems sad to the narrator, as if the returning sea is bringing with it the eternal note of sadness. And ये जो फर्स्ट पैरा है पोएम का, eternal note of sadness, इन इसके साथ यहाँ ख़त्म हो रहा है. And the second paragraph will start with Sophocles long ago heard on the Aeneas and brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. इसको हम कल देखेंगे. Thank you for joining.